निक्षेप सूत्र। जुत्तिसजुत्तमग्गे जं चौभे न होय खलु ठवणम् कच्चे सदिनामादिषु तं निक्षेपं हवे समये दव्वं विविहसहावं जेन सहावेन होहितं झेयम् तस्य निमित्तं कीरै एकं पियदौव चौभेदम् नामठवणादव्वं भावं तह जान होई निक्षेपम् दव्ये सन्ना नामं दुविहं पियतं पिविक्खायम् सायार इयर ठवणा कित्तिम इयरा दुबिंबजा पड़मा इयरा भणिया ठवणा अरिहोय नायवो दव्वं खूय दुभिदम् आगमनो आगमे न जवणियम् अरहंत सत्थ जानो अनजुत्तो दव्व अरिहंतो नो आगमं पितिविहं देहं नानि स्वाभाविकं मम च नानि शरीरं तिविहं च्युतचत्तं चाविदं चेति आगमनो आगमदो तहेव भावो विहोदि दव्वं वा अरहंत सत्थ जानो आगम भावो दु अरहंतो तद्गुणेय परिणदो नो आगम भाव होय अरहंतो तद्गुणये जादा केवल नानेहु परिणदो भणियो Samana Suttam, Sutra 42, Nikshepa Sutra, percepts of installation. Gatha 737. English rendering. There is a description of 4 types of nikshepas, ascriptions, as naming, sthapana, dravya and bhava. In the scriptures, to understand the right meaning of proposition. Gatha 738. A substance is possessed of various characteristics, and for the sake of that characteristics which is presently under consideration, one and the same thing is described in 4 ways. Gatha 739. Nama, sthapana, dravya and bhava. These 4 ways provide the concept of nikshepa. Of this,
Nama stands for the name of the things concerned and is of two types. Gatha 740. Sthapna is of two types. That which resembles the real shape of that for which it stands, and that which does not resemble the real shape. When there is a supposition of one object in the other, it is called sthapana nikshep. For example, supposing an idol of an arhat as an arhat. Gatha 741 and 742. Dravya, that is the potency, is of two types. Agamot, that in respect of authentic text, and non-agamot, that not in the respect of authentic text. Thus, the person who knows an authentic text pertaining to an arhat and yet is not making use of this knowledge of his is the agamota dravya, arhat. Similarly, no agamota dravya is of three types, which the knower's body, the would-be knower, one acting in a manner appropriate to the thing concerned, and the knower's body is of three types. That is, one fallen, one given up, and one made to fall. Gatha 743 and 744. Like dravya, bhava, that is the reality too, is of the two types. Agamot, that is in respect of the authentic text, and no agamot, that is not in respect of an authentic text. Thus, the person who knows an authentic text pertaining to an arhat and is also making use of this knowledge is agamot bhava arhat. On the other hand, the person who has developed the virtuous qualities appropriate to an arhat, or one who, while equipped with those qualities, undertakes meditation and so is considered to have become a Kevala Jnani, that is arhat, is no agamot bhava arhat. Samana Suttam, Sutra 42.
निक्षेप सूत्र, हिंदी रेंडरिंग सूत्र गाथा 737। युक्ति पूर्वक उपयुक्त मार्ग में प्रयोजनवश नाम स्थापना द्रव्य और भाव में पदार्थ की स्थापना को आगम में निक्षेप कहा गया है। गाथा 738। द्रव्य विविध स्वभाव वाला है, उसमें से जिस स्वभाव के द्वारा वह ध्येय या ज्ञेय यानी के ध्यान या ज्ञान का विषय होता है, उस स्वभाव के निमित्त एक ही द्रव्य के ये 4 भेद किए गए हैं। गाथा 739। और इसीलिए निक्षेप 4 प्रकार का माना गया है: नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। द्रव्य की संज्ञा को नाम कहते हैं। उसके भी 2 भेद प्रसिद्ध है। गाथा 740। जहां एक वस्तु का किसी अन्य वस्तु में आरोप किया जाता है, वहां स्थापना निक्षेप होता है। यह 2 प्रकार का है: साकार और निराकार, कृत्रिम और अकृत्रिम। अरहत की प्रतिमा साकार स्थापना है और किसी अन्य पदार्थ में अरहत की स्थापना करना निराकार स्थापना है। गाथा 741 and 742। जहां वस्तु की वर्तमान अवस्था का उल्लंघन कर उसका भूतकालीन या भावी स्वरूपानुसार व्यवहार किया जाता है, वहां द्रव्य निक्षेप होता है। उसके भी 2 भेद है: आगम और नो आगम। अरहत कथित शास्त्र का जानकार उस समय उस शास्त्र में अपना उपयोग नहीं करता। उस समय वह आगम द्रव्य निक्षेप से अरहत है। नो आगम द्रव्य निक्षेप के 3 भेद है: न्यायक शरीर, भावी और कर्म। जहां वस्तु के ज्ञाता के शरीर को उस वस्तुरूप माना जाए, वहां न्यायक शरीर नो आगम द्रव्य निक्षेप है। जैसे राजनीतिज्ञ के मृत शरीर को देखकर कहना कि राजनीति मर गई, न्यायिक शरीर की भूत, वर्तमान और भविष्य की अपेक्षा 3 प्रकार का तथा भूत नायक शरीरच्युत, त्यक्त और चावित रूप से पुनः 3 प्रकार का होता है। वस्तु को जो
स्वरूप भविष्य में प्राप्त होगा, उसे वर्तमान में ही वैसा मानना भावी नोआगम द्रव्य निक्षेप है। जैसे युवराज को राजा मानना तथा किसी व्यक्ति का कर्म जैसा हो अथवा वस्तु के विषय में लौकिक मान्यता जैसी हो गई हो, उसके अनुसार ग्रहण करना कर्म या तद व्यतिरिक्त नोआगम द्रव्य निक्षेप है। जैसे जिस व्यक्ति में दर्शन, विशुद्धि, विनय आदि तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करने वाले लक्षण दिखाई दे, उसे तीर्थंकर ही कहना अथवा पूर्ण कलश, दर्पण आदि पदार्थों को लोक मान्यता अनुसार मांगलिक कहना। गाथा 743-744 तत्कालीन पर्यायों के अनुसार ही वस्तु को संबोधित करना या मानना भाव निक्षेप है। इसके भी दो भेद है, आगम भाव निक्षेप और नो आगम भाव निक्षेप। जैसे अरहत शास्त्र का न्यायक जिस समय उस ज्ञान में अपना उपयोग लगा रहा है, उसी समय अरहत है। यह आगम भाव निक्षेप है। जिस समय उसमें अरहत के समस्त गुण प्रकट हो गए हैं, उस समय उसे अरहत कहना तथा उन गुणों से युक्त होकर ध्यान करने वालों को केवल ज्ञानी कहना नो आगम भाव निक्षेप है। समण सुत्तम सूत्र 42 निक्षेप सूत्र संस्कृत रेंडरिंग गाथा 737 युक्ति सुयुक्त मार्गम यत् चतुर्भेदेन भवति खलु स्थापनम् कार्यैर्सति नामादिषु सनिक्षेपो भवेत् समये। गाथा 738 द्रव्यं विविध स्वभावं येन स्वभावेन भवति तद् ध्येयम् तस्य निमित्तं क्रियते एकमपि च द्रव्यं चतुर्भेदम्। गाथा 739 नाम स्थापनां द्रव्यं भावं तथा जानिहि भवति निक्षेपः द्रव्ये संज्ञा नामं द्विवधमपि च तदति विख्यातम्। गाथा 740 साकारेतरा स्थापना
कृत्रिमेतराहि बिंबजा प्रथमा इतरा भणिता स्थापनार्हर्षश्च ज्ञातव्यः। गाथा 741 and 742। द्रव्यं खलु भवति द्विविधम् आगमनो आगमाभ्याम् यथा भणितम् अर्हत शास्त्र न्यायकः अनुपयुक्तो द्रव्यार्हणम् नो आगमः अपि त्रिविधः देहो ज्ञानिनो भाविकर्मं च ज्ञानी शरीरं त्रिविधं च्युतं त्यक्तं चावितं च इति। सूत्र 743-744। आगम नो आगम तस्थतैव भावोऽपि भवति द्रव्यमिवः अर्हत शास्त्र नायकः आगम भावो हि तद्गुणैश्च परिणतो नो आगम भावो भवति अर्हन् तद्गुणैर्ध्याता केवल ज्ञानी परिणितो भणितः।